3 تو ایک میرا کزن تھا, اس نے مجھے کال کی تو آپ جلدی پہنچے, ناظم بھائی سے عرب نے لڑائی کی, انہوں نے رینجرز بلائی پریشر کر کے اس کو. تو ناظم کی موبائل جیسے اس نے ویڈیو وائرل کی تو ان کے اوپر ویڈیو بھری تو انہوں نے ناظم کو تھپڑ مارا, موبائل چھینا, پھینک دیا موبائل. دوبارہ موبائل ناظم نے ویڈیو وائرل کی تو وہی ویڈیو اس قاتل نے جامع اویس بازار میں دیکھی تو اس نے مجھے اس کے سیکریٹری کے تھرو مجھے کال کی کہ افضل آپ کے بھائی کو کون سا گھاڑ میں کیڑا ہو گیا کان میں, یہ الفاظ میں مجبور سے نکالا ہوں کیونکہ مجھے دکھ ہے. اس نے یہ بات کی کہ افضل آپ کے بھائی کے کون سا گھاڑ میں کیڑا تھا, یہ ویڈیو وائرل, اس کو بولو جلدی ڈیلیٹ کرے اور میرے پاس پہنچے, پیش ہو میرے پاس. میں کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, میں نے بھی ویڈیو نہیں دیکھی ہے, میں دیکھتا ہوں. تو میں آدھے گھنٹے بعد بھائی کے گھر کیا, بھائی نے بولا یہ مسئلہ ہوتا, یہ حادثہ ہوا تھا تو میں ڈیلیٹ نہیں کروں, میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں, میں نہیں جھکوں گا. وہ دلیر بندہ تھا, مجھ سے لڑتا تھا, آپ کمزور ہو, آپ ڈرپوک ہو, مجھے بولتا تھا, میں نہیں جھکنے والا سرداروں کے سامنے. تو یہ بات میں نے سیکھی. تو پھر 11 بجے تک تقریباً ایم این اے جامع عبد الکریم کا پی ایس اے پرسنل سیکریٹری نیاز صلاح, جس نے وہ بھی ملوث ہے اس قتل میں, تو اس نے مجھے کہا کہ 11 بجے کہ میں آ رہا ہوں جامع عبد الکریم نے آپ کو ناظم کو بلایا, میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں. تو میں فوراً چلا گیا. سرداروں کا حکم آنکھوں بھی ہم رکھتے تھے, یہ امید نہیں تھی یہ نوبت نہیں آتی. تو نیاز ہمیں دونوں بھائیوں کو لے کر ادھر پیش کیا. جام کریم رات کو دونوں بھائی اندر چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں جیسے باہر بیٹھا ویٹ کر رہا تھا ان کا, تو گارڈ کو الرٹ کیا. 7-8 گارڈ تھے, جام کریم نے گارڈوں کو الرٹ کیا. تو گارڈوں کو پھر جام عبد الکریم باہر آیا چیمبر سے, بولا ہاں بدماش کیا مسئلہ ہے تیرے سے, میرے بھائی کو وہ بول رہا تھا میرے سامنے, ہاں بدماش کیا مسئلہ ہے تیرے سے. تو گارڈوں کو بولا اس کو ادھر لے جاؤ, پاسورڈ کو ادھر لے جاؤ وہاں. وہ سمجھ کے ان کو پتہ تھا باؤنڈری کے آؤٹ آف, تو اس ایریا میں لے جاؤ جہاں مارتے ہیں لوگوں کو. تو اسی ٹائم میں نے چیخیں سنی میرے بھائی کی, گارڈوں نے تشدد کیا, مارا اس کو, وہ چیخیں کر رہا تھا. میں جامع عبد الکریم کے سامنے ہاتھ جوڑا تھا, بولا بابا میں آپ کا حکم آنکھوں پہ رکھ کے آیا ہوں ادھر, تو مہربانی کرو میرے بھائی کو, یہ چیخیں میں سنا یہ کیا ہے. بولا چپ ہو جاؤ, بولا میں آپ کی 1000 باتیں سنوں گا, یہ بات نہیں کروں مجھ سے. بولا آپ کو میں مجھے کس لیے بلایا ہے, میں آپ کی بات آنکھوں پہ رکھ کے آیا ہوں, آپ سے یہ امید نہیں تھی. تو بولا ٹھیک ہے. 2 گھنٹے مجھے ویٹ کرایا, 3 ہوئے تھے. پھر ناظم کو بلایا میرے بھائی کو, جامع عبد الکریم نے کرسی منگائی تو وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. ناظم کو بولا ہاں ناظم بیٹا آپ میرے بیٹے ہو, تو آپ یہ بات مانو کہ میں نے غلطی کی ہے. ناظم نے ادھر ہی جواب دے دیا جامع عبد الکریم کو, کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان کے سامنے کوئی آنکھیں بھی اوپر کرے. ناظم نے بالفور ادھر جواب دے دیا, میں نہیں سوری نہیں کروں گا, نہ میں ڈیلیٹ کروں گا ویڈیو. تو یہ تھوڑا برہم ہو گیا جامع عبد الکریم. تو مجھے بولا افضل آپ چلے جاؤ گھر, یہ ادھر ٹھہرے گا, کل عربوں کو اور ناظم کو کل صلح کراتے 10 بجے آ جانا, آپ کے بڑے وہ بھی لے آنا. میں بولا ٹھیک ہے. تو میں بھائی کے کپڑے بھی پھاڑے تھے بھائی کے گارڈوں میں, تو میں جیسے ادھر کپڑے لے کے گیا تو بات اور تھی. مجھے پیاروں نے پی ایس نے جامع عبد الکریم وہ صبح 7 بجے پہنچا, اس کو پتہ تھا یہ مسئلہ ہو چکا ہے, ڈیڈ باڈی پڑی ہے ادھر جامع اس میں. تو میں جیسے پہنچا, میرے ماموں تھے اور بھی میرے استاد ٹیچرز ہیں, اور ایک پڑوسی تھا وہ میرے ساتھ تھا. جیسے پہنچے تو ان کے وڈیروں نے مجھے بولا کہ آپ کا بھائی رات کو ایکسپائر ہو گیا. تو میں بس ختم ہو گیا. میں نے آپ کو اس کے ایکسپائر ہونے کی انتقال مطلب شہید ہونے کی جو اطلاع ہے وہ کب ملی تھی؟ یہ تقریباً 10 بجے مجھے انہوں نے ادھر ہی جامع ہاؤس میں بلا کے پھر بتایا. اچھا واقعہ کس دن کا ہے, انتقال کس دن ہوا, پولیس کو آپ نے کب اطلاع کی تھی اور ایف آئی آر کب ہوئی؟ یہ واقعہ 2 تاریخ کو ہوا تھا, 2 تاریخ کو ہوا تھا. تو تقریباً یہی ہمارے گاؤں کے ساتھ عربوں نے کیا تھا نا, وہی اسی دن ہوا تھا. تو اس کو پریشرائز کر کے ادھر بلایا, دھوکہ چیٹنگ کر کے. سالار نے مجھے دھوکہ دے گیا, تو میں ادھر ہی چلا گیا جامع. تو ادھر ہی مجھے صبح وڈیروں نے بتایا, اس کے چمچوں نے بتایا کہ
आपका भाई एक्सपायर हो चुका है, रात को गार्डों से हाथापाई हुई है, उसको गार्डों से हुई है, वो पॉइंट मारे थे, गार्डों से हाथापाई हुई है, वो एक्सपायर हो चुका है। बॉडी अभी तो मैंने उनसे नहीं पूछा बॉडी का, मुझे दुख हुआ, मैं चला गया गुस्से से, वापस निकल के जामाओ से। तो मैंने दोस्तों से रब्ता किया, दोस्तों ने बोला प्रेस क्लब पे आ जाओ। तो मैं बहुत इंतहाई शुक्रगुजार हूँ प्रेस क्लब मलिर वालों का, जिन्होंने मुझे इतना हाईलाइट किया। हम गरीब बंदे थे, मैं साहब डिस्ट्रिक्ट मेंबर रह चुका हूँ, उनके साथ कुलीग्स हूँ जिन्होंने कत्ल किया है, उनके साथ। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो एफआईआर हुई, मुकदमा हुआ है, क्या उसमें जिन लोगों को तुमने नामजद कराना था उनको नहीं करा सके, या क्या वजूहत थी, क्या कहोगे पुलिस को? आपके मनोवन बयान पे एफआईआर हुई या नहीं हुई? भाई हम भी खड़े हैं। बिल्कुल 101 एफआईआर हुई थी, और जैसे डेड बॉडी मुझे जिना हॉस्पिटल से मैंने रिसीव की तो मैं फिल फॉर मेमनकोट थाना पहुंचा। उधर ही एसएसपी इरफान बहादुर बैठा हुआ था, वो बस हमारे पहुंचते वो निकल गया। तो एसपी मलिर था, उधर ही बैठा हुआ था, मुझे अंदर ले गया। उसने बोला एफआईआर हो चुकी है, जो नाम आपने दिए वो हुए। तो मैंने बोला मुझे एफआईआर दिखाओ, फिर मैं एतमाद करूँगा और साइन करूँगा। तो मुझे एफआईआर दिखाई गई कॉपी, जो नाम मैंने दिए वही हुए थे। अभी मैं मुतालबा करता हूँ चीफ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान, डीजी रेंजर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं उसका वर्कर हूँ, पार्टी का था, पीपल्स पार्टी का वर्कर था। बिलावल भुट्टो का मैं जियाला मोहतरमा शहीद का मैं कारसाज हमले जो हुआ था मैं उसमें शामिल था। तकरीबन उनके 2 किलोमीटर तक फासले पे था, मैं उनका पुराना वर्कर हूँ। उन्होंने मुझे पार्टी ने अभी तक मैंने सुना ये कि वज़ीर आला ने थोड़ा कुछ नोटिस लिया, मुझे पता नहीं किस सवाल से लिया, उनके ऊपर लिया या हमारे ऊपर लिया, नोटिस दिया, पता नहीं कौन किसका नोटिस लिया। आपने किन किन लोगों को नामजद कराया था एफआईआर के अंदर? नाम मैंने जो दिए वो जो कातिल है, नियाज सलार जो क्यों जाम अवेज बिजार, जो इस हलके का जो कब्रस्तान जहाँ हम खड़े इस हलके का MP है साकरो PS 79, और तो वो MP प्रोविंस असेंबली मेंबर है संजय असेंबली का। और क्या नाम? और अहमद शोरो 2 घाट। इन लोगों को नामजद कर दिया एफआईआर में? ये सारे लोग नामजद हैं? इनमें से कोई गिरफ्तार हुआ है नहीं हुआ? नहीं, गिरफ्तार अभी नहीं। उन्होंने अपने तरफ से 2 गार्ड कल से दे दिए कि ये बंदे कातिल हैं, इनको पकड़ो। जाम साहब ने खुद भेजे। अच्छा, अब आप लोगों का लाएमल क्या है? आइंदा का कोई एहतजाज वगैरह करेंगे या? लाएमल ये इंशाल्लाह जब तक ये बंदे जो नॉमिनेट हैं जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा इंशाल्लाह। पूरे हाल पाकिस्तान में हमारे साथ मीडिया वालों ने बहुत कंप्रोमाइज़ किया, मैं इनका बहुत इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जो रास्तों कल तक आज तक मेरे साथ खड़े। मुझे ये बताओ, क्या लायामल होगा अगर मुलजमान गिरफ्तार नहीं होते? क्योंकि एक MP है और दूसरे उसके जो है सारे PS हैं, क्या समझते हो गिरफ्तार होंगे? और नहीं होते तो क्या लायामल होगा? क्योंकि माजी में ये देखने में आया कि जो भी वडेरा होता है उससे इन दी एंड कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, मुखमुक्का कर लिया जाता है, और उससे या तो डर के या उसकी इज्जत करके खामोश हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और आप बता दीजिएगा कि आप भी जो कि और आपकी कौम का वो सरदार भी है जिसको आप FIR में नामजद कर रहे हो, वो मुझसे बता मुझे दो ये लगता है वो लोग जहाँ से इस पीपल्स पार्टी मुंतखब हुए वो पीपल पार्टी उनकी सपोर्ट करेगी या मेरी करेगी ये मुझे पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये पुलिस इनको प्रेशर करे, वो बड़ी पार्टी है, वो पैसे ताकतवर लोग हैं, वडेर हैं इनके, और पता नहीं क्या क्या इनका कारोबार चलता है। मैं अभी मुँह से नहीं निकालता, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होते हैं फिर मैं ये अल्फाज निकालूंगा कि ये इनका धंधा है, ये करते हैं, क्या करते हैं वो। मैं इनके साथ रहा हूँ, जामा उसमें खाना एक साथ खाते थे, जो भी बात मुझसे शेयर करते थे, जो मसला था वो खुद दोनों भाई मुझसे टच थे, सारे लोगों को पता है। मैं उनका बिल्कुल ठीक है अफजल भाई यार वो वीडियो यार वो आप वो वीडियो सुकून था ना गालान तो दियो मेरे भाई सामने देख के आपको बात करना इसलिए किया गया था कि मेरा भाई एक गैरतमंद था, नौजवान था, उसका खून
नौजवान था वो तकरीबन गुस्सा तो करता था लेकिन जायज़ करता था। तो वो अरब लोग कहीं शिकार करते, तलूर इनसे भाग गई थी किसी एरिया में, तो तलूर पकड़ी नहीं गई इनसे, तो ये डायरेक्टली हमारे गांव के पीछे आधा किलोमीटर फासले पे गांव के अंदर घुस गए थे। तो मेरे भाई ने इनको रोका, आप लोग कौन हो? तो इन्होंने गाड़ी से जैसे उतरे रोड ब्लॉक किया, हमारे गांव का रोड ब्लॉक किया, भाई को थप्पड़ मारे, मोबाइल छीना। फिर मेरे भाई ने मोबाइल इनसे ली, उसके बाद वीडियो वायरल की थी, ये लोग हैं हमारे ऊपर गांव के अंदर घुसने की कोशिश करें और आगे आबाद ये बच्चे रहते हैं, इधर शिकार अलाउ नहीं है, जहाँ करना है वहाँ करो। तो इन्होंने बोला हम जाम गोराम के बंदे, मनी का मकसद क्या है, वो हम उनको पेमेंट करते हैं मनी। जो मुझे जाम अब्दुल करीम ने वॉइस सुनाई थी वो कह रहे मनी हम प्रोवाइड करते हैं, इनको एडजस्ट करते हैं, जो मांगते हैं मुंह मांगी रकम लेकर उनसे शिकार कराते हैं तलूर का। तो मेरे भाई ने ये गैरत की, हमारे गांव में अंदर शिकार अलाउ नहीं है, आप लोग चले जाओ। फिर उसको मारा है। उसके बाद सरदार साहब ने, जाम अवैस साहब ने वीडियो देखी, वायरल हुई है, मुझे उसके पर्सनल सिक्योरिटी से कॉल की, उसने खुद बात की कि आपके भाई को गांड में कौन सा कीड़ा हो गया, जो वीडियो वायरल की, हमारे गेस्ट हैं वो। तो मैं बोला ठीक है, मैंने वीडियो नहीं देखी, मैं आपको बताता हूँ पूछ के। तो भाई ने बोला मैंने वीडियो भरी है, उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है। मैंने उनको बोला आप लोग कहाँ से आए हो, कौन हो? तो उन्होंने मेरे पर तशद्दुद किया, थप्पड़ मारे। तो जाम साहब ने बोला आप लोग जल्दी फिलफौर वहाँ पहुँचो जाम हाउस। मैं बोला ठीक है। तो 3 घंटे हो गए थे, 8 बजे उस टाइम कॉल की थी, तो 11 बजे जाम अब्दुल करीम के पर्सनल सेक्रेटरी नियाज साला, जो हमारे यूसी गगर का सदर भी है अभी, तो उसका पर्सनल सेक्रेटरी नियाज साहब, पीपल पार्टी। तो नियाज साहब ने मुझे कॉल की कि मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आप आ जाएँ, नाज़िम को लेकर भी आ जाएँ। तो जाम साहब ने कहा, मैंने बोला ठीक है मैं चलता हूँ, हाजिर हूँ, जाम साहब का हुक्म है, मैं चलता हूँ। उधर ही पहुँचे जाम हाउस। तो जैसे गार्ड तो अलर्ट थे, पहले गार्ड अलर्ट थे ऑलरेडी। तो जाम अब्दुल करीम बाहर निकला, मेरे भाई को डायरेक्टली बोला हाँ बदमाश क्या मसला है तेरे, ये अल्फाज लेके। तो गार्ड ने बोला उधर ले जाओ, पासवर्ड कोड था उसका, उधर ले गया। फिर 2 मिनट बाद इसको मारा। मैंने भाई की चीखें सुनी, मैंने जाम अब्दुल करीम को हाथ जोड़े, बाबा मैं सॉरी करता हूँ भाई की तरफ से, वो नहीं माना तो मैं आया हूँ आपके दर पे, मुझे आप माफ़ कर दें। बोला आपका मसला नहीं है, मैं आपकी 1000 बात मानूंगा, लेकिन आपके भाई ने ये मसला किया है, ये तो वो खुद जवाब देगा। फिर 3 घंटे बाद तकरीबन रात को 3 बजे जाम अब्दुल करीम खुद मेरे भाई को उधर बुलाया। मैंने देखी उसकी हालत तशद्दुद था, वो ज़ख्मी था और कपड़े फटे हुए थे, तो बहुत बुरा हाल था। तो जाम साहब ने नाज़िम भाई को, मरूम को बैठाया सामने, बोला नाज़िम बेटा आप सॉरी करो, वो हमारे गेस्ट हैं, हमारी इंसल्ट है, आप सॉरी करो, ज़बरदस्ती सॉरी करो तो मैं आपका मसला हल कराता हूँ। उसने बोला करते ही नहीं, मैं सॉरी नहीं करता, उसको मुंह पे बोल दिया। तो मैंने बोला नाज़िम भाई देखिए आप अपना सरदार है, बड़ा बैठा है, आप इस तरह बात ना करें। बोला आप चुप हो जाओ, मुझे बोला आप चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं डरने वाला किसी से नहीं हूँ। तो जैसे 3 हुए तो जाम अब्दुल करीम बोला मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ, अभी जो ना जाम अवैस गोराम वो खुद देखेगा। तो मुझे लगता है 5 बजे इन्होंने तशद्दुद करके मेरे भाई को कत्ल कर दिया। फिर सुबह जैसे मेरे भाई के मैं घर से कपड़े लेके गया था, मैंने बोला कपड़े रात को फटे हुए थे, नहीं पहनूंगा और वापस भाई को लेके आऊँगा। तो उन्होंने जैसे जाम हाउस पहुँचा तो उन्होंने इन्फॉर्म की कि आपका भाई रात को एक्सपायर हो गया। तो मैं रो पड़ा, मायूस हो गया, वहाँ से निकल गया। फिर डायरेक्टली मैं प्रेस क्लब मलिर पे आया, उन दोस्तों ने मेरा कंप्रोमाइज़ किया, साफ़ी दोस्तों ने, उन्होंने हाईलाइट किया ये। उसके बाद आप लोगों को पता चला तो आप लोग भी चले आपकी क्या मुतालबा है? मेरा अभी मुतालबा है कि हमारी पूरी फैमिली का, पूरे इलाके का, कि जिनके ऊपर FIR दर्ज है, नॉमिनेट हैं, उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, वरना यही एहतजाज जारी रहेगा इंशाल्लाह जब तक ये गिरफ्तार नहीं। पुलिस ने ये पेशरफ कहाँ तक की है? कुछ पकड़ा है ये नहीं पकड़ा है? नहीं, उसने अपनी तरफ से 2 गार्ड दे दिए, भाई ये कातिल है, इन्होंने कत्ल किया। तो मैंने बोला ये बंदे हैं नहीं, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जवाब देना है मुझे, मैं ऐसे कैसे बोल दूँ हाँ ये कातिल है? नहीं, बोला जो नॉमिनेट है वो अपनी तरफ से पता नहीं कहाँ आप कचरे से उठा के ले आए, इधर सड़े हुए हैं पहले,
कल मर जाएंगे, बोला ये तो ख़त्म थे। तो जो नॉमिनेट है उनको गिरफ्तार किया। किस किस को नॉमिनेट किया है नाम? जाम अवैस बिजार जो इस साल के जाम खड़े इस साल के का एमपी है साकरो का एमपी है पीपल्स पार्टी का, और उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी जाम अब्दुल करीम का वो नियाज सालार अहमद शोरो दो उसके कहा है। तो अपील क्या करेंगे आप हुकूमत से? अभी कि मैं क्या चाहिए? पुरजोर अपील करता हूँ, मीडिया का बहुत इंतहा शुक्रगुजार हूँ, और चीफ ऑफ आर्मी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान से, और बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन जो है आसिफ अली जरदारी से मैं अपील करता हूँ, वज़ीर आला सिंह से कि फिल्म और SSP मई से कोई मेहरबानी करके मैं आपको बस मकतूल का भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अर्ज़ करता हूँ इनको फिल्म और गिरफ्तार कीजिए। अच्छा, आंचा का नया अमल क्या होगा आपका? आंचा का नया अमल मुझे लगता है वो बड़ी पार्टी है, हो सकता है पुलिस पॉलिटिक्स समझ के उनको तवज्जो ना दे, यही हालत रही तो हम एहतजाज इंशाल्लाह जारी रखेंगे। बहुत